ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಾಲಯಾಂ ನಮಾಮಿ ಚಂದ್ರನಿಲಯಾಂ ಸೀತಾಂ ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಂ. ನಮಾಮಿ ಚಂದ್ರನಿಲಯಾಂ ಸೀತಾಂ ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ವಿಕಥನದ ಮತ್ತೊಂದು ರಸವತ್ತಾದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಸೀತಾಯಾಶ್ಚರಿತಂ ಮಹತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சீதை பற்றி தான் இருக்கு ராமாயணம், ராமனை பற்றி இல்லை. பாவம், அந்த அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கா, அவரால் தான் இந்த எல்லா ராமாயணமே நடந்ததுன்னு சீதாயாஸ் சரித்தம் மகத்துன்னு சொல்லியிருக்கார். அப்படிதான் இன்னைக்கு இந்த உலகம், சங்கீத உலகத்தில் ஒரு பெரிய மேதை, அவருடைய பாத்திரம் எவ்வளோ பெருசு அது நாங்கள் சொல்லவே முடியாது. அவ்வளோ ஒரு இந்த க்ஷேத்திரத்துக்காக பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பாடகி இன்னைக்கு we have with us none other than, none less than the great சீதா நாராயணன் மாமி is with us. அவர் இங்கே இருக்கிறதே எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் to come visit her and talk with her, and we enjoyed the breakfast, looking forward for lunch. அது நடுவில் மாமி கிட்ட நிறைய பேசி நிறைய we are taking ஞானம், knowledge and inspiration. மாமி, welcome to our கீர்த்தி விகதனா series. Very happy to be with you all. Thank you மை. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்க்கறது. அண்ட் எங்களை for our கீர்த்தி விகதனா audience, can we start with a பாடல் or ஏதானுமே மங்களமாக ஒரு ஓகே. நீங்கள் கன்னடத்தில் பேசினேன், ஸோ நானும் ஒரு உகா புகால் ஆரம்பிக்கவா? கண்டிப்பாக. ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ, ಅಜಾಮಿಳನು ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಬಂದಂತೆ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವರಾಯ ಕರೆದರೆ ವಾಸುದೇವ ಬಂದಂತೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ, ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು ನಾನು ಕರೆದರೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರು, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಡಿಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ
ಉಂಗುರ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಡಿಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ವೈಜಂತಿ ಮಾಲಾ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕಾಲಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಕಾಲಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯ ವಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯ ವಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಪೂಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮೈಯೋಳು ಗಮ ಗಮ ಪೂಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮೈಯೋಳು ಗಮ ಗಮ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರುತ್ತ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ 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 ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ இதுக்கப்புறமா பேஷணுமா அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. ரொம்ப அப்படி அற்புதமாக இருந்தது. இட்ஸ் லைக் செட்டிங் த ஆம்பியன்ஸ் சொல்கிற மாதிரி. So very nice. This is one of the song I love. Somebody asked me, மாமி நீங்கள் கிருஷ்ணா நீ பாடுறச்ச கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கே எப்படின்னு விட்டுன்னு. Because taught to me by Ramurthy Rao, but I did lot of embellishment later because I thought in my mind, கிருஷ்ணா should be called ராதா எப்படி கூப்பிட்டாலோ அப்படி, அப்புறம் வந்து அவள் அம்மா யசோதை எப்படி கூப்பிட்டாலோ அப்படி, பக்தா எப்படி கூப்பிட்டாலோ அப்படி, எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் தேவகி எப்படி கூப்பிட்டான். ஷி வாஸ் ஏர்னிங் ஃபார் ஹிம் ஆல் த வே ஹி வாஸ் அவே. ஸோ எப்போவாது வரமாட்டேயான்னு. ஸோ அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம ப்ரெசன்டேஷனில் பாவமும் பக்தியும் இல்லையானாக்கா அது எடுப்படாது. தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன். ಜಸ್ಟ್ ஒரு ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, அந்த தாயிಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ஒரு வாட்டி பாடி கிருஷ்ணா நீ வேகனே பாட முடியுமா? ஓகே. நான் ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡணும் ரொம்ப ಆಸೆ. ಓಕೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ರೈಟಾ ಬಾಯೋಳು ರೈಟಾ?
ಬಾಯಲ್ಲಿ அதான் அது ஏன்னா நீங்கள் புரந்தரதாஸ் பாட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 புஸ்தகத்தில் 10 விதம் இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் வேணும் சும்மா ஒரு வாட்டி ஐ வாண்ட் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் எங்கேயோ ஒரு சபால நான் பாடுறத லேடிஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது. ஒரு அம்மா எழுந்து வந்து ஆட ஆரம்பிச்சுட்டா, நன்னா பரதநாட்டியம் ஆடினான். ஸோ நான் நிறைய சங்கத்தியெல்லாம் போட்டு பாடினேன். இல்லை நான் அப்படி அவ்வளோ நல்லா ஆட மாட்டேன். ஸோ ஒரு சங்கத்துக்கு போகிறோமா? ஓகே, ஜெகதோத்தாரக்கால தான் நிறைய சங்கதி போட முடியும். தட்ஸ் ஒன் வேர்ட் யூனோ, ஜெகதோத்தாரக்கன். அந்த கம கம அது ராமூர்த்தி ராவுடைய. ஹி வாஸ் எ வெரி பர்சன் வித் லாட் ஆஃப் இமேஜினேஷன்ஸ், ஐடியாஸ் அப்படி பொங்கி கொட்டும். ஐ லேர்ன்ட் எ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் டு சிங் ஸ்லோகம் எப்படி பாடணும்னு. மா வச்சு விடுவா வேணும்னா. தாயிக்கே ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರುತ್ತ, ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರುತ್ತ, ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ, ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ 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 ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ 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 ಬಾರೋ. தேங்க்யூ மா, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ரொம்ப அழகாக ஆடுறேன். அதுக்குள்ளே பூந்துக்கணும் எந்த ஒரு ஆர்ட்டானாலும். யூ டூ தட். பாடின யார் வேணுமான்னு டான்ஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சாரி, வி ஜஸ்ட் வெண்ட் ஆஃப் தி இன்டர்வியூ ஃபார் அ மூமெண்ட் அண்ட் என்ஜாய்டு தி திங். கம்மிங் பேக், அம்மா இன்னைக்கு கொஞ்சம் உங்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி, ஓகே, உங்களுடைய சங்கீதத்தை பற்றி கேட்டு புரிந்து அப்படியே கொஞ்சம் இஃப் வி ஆல்சோ கேன் எமுலேட், அதனால தான் இந்த இன்டர்வியூ வேர் டூயிங். पहला सवाल तो आप जी थोड़ा थोड़ा थोड़ी या थोड़ा ठीक है, नहीं कुछ थोड़ा हिंदी आता है, अच्छा उसमें पूछूंगा. आप अगर हिंदी में बोल सकते तो इसको भी हिंदी में बोल दूं मैं, जो आपने अभी सवाल पूछा है मेरे बैकग्राउंड के बारे में. वही आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसा था, वो सब हमारे लिए कुछ. जी, हम परंपरा से हम लोग केरला ब्राह्मण हैं, पालघाट के लोग हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स 1920 के तहत कभी जमशेदपुर में माइग्रेट कर गए, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे थे. तो वहीं मेरी बड़ी बहन, उससे बड़ा एक भाई बहन तो तब थे, फिर बड़ी बहन मेरा और मेरा छोटा भाई, हम लोगों का जन्म जमशेदपुर में हुआ. 5 लोग. हाँ, बड़ा भैया, फिर 3 लड़कियाँ, फिर एक छोटा भाई. तो हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे वहाँ. तो हिंदी में होता था पढ़ाई लिखाई, इसलिए मैं हिंदी बोल पा रही हूँ. तो फिर वहाँ पे घर में ऐसा था ना संगीत का माहौल. और ये जमशेदपुर में जैसे माइग्रेट किया, हमारी पूरा फैमिली, मामा की फैमिली, बुआ की फैमिली, सब 30-40 जने माइग्रेट किए हुए थे वहाँ पे. 7-8 फैमिलीज थे. उसमें मेरे मामा और मेरी माँ, ये लोग बहुत अच्छा, मैंने स्टेज में तो नहीं गाया है, लेकिन बहुत संगीत का नॉलेज था, अप्रिसिएशन था.
ट्रू सेंस में रसिका थे। हाँ। और गांव में उनका जन्म वगैरह हुआ था, इसलिए नादस्वरम हर एक मंदिर के फंक्शन में बजता था। वो सब सुन के बड़े हुए, इसलिए उनका जो मनोधर्मम, रागा आलापनय, कीर्तना, ये सब का जो था वो सब बहुत माने प्योर था और बहुत एक्सटेंड बड़ा भी था। तो पर बात ऐसे हुई कि जमशेदपुर एकदम गांव से डेवलप हो रहा था वहाँ के स्टील इंडस्ट्री की वजह से, तो वहाँ मैंने साउथ इंडियन कल्चर इसका इतना नहीं था। और आज जैसी बात नहीं थी, पालघाट से निकल के 4 दिन लगता था पहुँचने में ट्रेन में। हाँ, तो वहाँ पर सब हिंदी में पढ़ाई लिखाई, कोई इतना मैंने साउथ इंडियन कल्चर ये नहीं था। लेकिन ये जो माइग्रेट जो फैमिलीज़ किए थे 100 फैमिली के करीब, उनके बीच में बहुत एकता थी, बहुत नाता था। इसलिए तो ये जो जिसको गाना आता था वो सिखा देता था। हमारे यहाँ हमेशा रामायण, और पिताजी हमेशा अध्यात्म रामायण पढ़ाते थे। वो खत्म होने से, हाँ, उनके नाम, पिताजी का नाम वैद्यनाथ, हाँ। माँ सीता लक्ष्मी। तो इनका ये मैंने ये वो रामायण पढ़ते थे, सुनाते थे, ख़त्म होता तो फिर शुरू करते थे। माँ का जो एजुकेशन ज़्यादा उस जन्म में पढ़ा नहीं था। अभी माँ होती तो 112 साल की होती। तो पहले तो वहाँ इन लोगों ने संस्कृत में पढ़ाई की है। तो मेरी माँ कालिदास के सारी रचनाएं सब उनको कंठस्थ याद थी, श्लोका। इसलिए हमारे घर में हम लोग सब श्लोका, कब सीखा कैसा सीखा ये मालूम नहीं, इतना सारा श्लोक हमें सिखाया गया। घर में हमेशा संगीत गूंजता रहता था, ऐसा बैकग्राउंड था। तो मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ कहती है कि 3-4 साल से ही पता नहीं कहाँ से सुन के सीखा, लेकिन बहुत बड़ा संगीत ज्ञान का मैंने उनको आभास कराया। एक बार आपने वो माइक भी पकड़ा था, हाँ, वो भी कुछ बताइए। तो एक बार जब मैं 3 साल की थी तो वहाँ भरतनाट्यम और कचेरी तो बहुत बहुत कम आते थे। कलकत्ता में कोई विद्वान आया तो वहाँ 2 घंटा गा के जाता था। तो वैसे तो वहाँ कोई रघुवींद्र संगीत का कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन और मैं 3 साल की कुछ थी, मैं लेके गए। तो वहाँ में कुछ वो लोग गाना बजा रहे थे, गा रहे थे। तो वापस आके मेरी माँ पूछी, ये तो हमारी पहचान को कोई राग नहीं लग रहा। बड़ी बहन को पूछी क्या था वो, कैन यू रिपीट द ट्यून, पूछ रही थी। तो मैं तो 3 साल ठीक से बड़े बड़े अक्षर तो बोलना भी नहीं आता था मेरे को। तो मैंने एकदम तुतला के बोल दिया, हम तो शब्द नहीं बोल सकते लेकिन गाना हम गा के सुना देंगे। हाँ, तो फिर हम पूरा नोट्स में सुना दिए, स गा रि सरि गा रि सा रि ग रि सा सा म ग म प ध प म प ध प म ग रि सा, पूरा गा दिया। तो मेरी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसा, एक बार सुने थे रात में। तो उसके एकदम अनजान हूँ मैं, ना राग आता था, ये पता नहीं क्या राग है ये भी मालूम नहीं। तो बहुत खुश हो गए लोग। लेकिन सीखने से बड़ी बहन भी अच्छा गाती थी, मन कोई आता था सिखाता, ऐसा प्रॉपरली सिखाया नहीं जाता था। इस बीच में हमारे वो जो गली में जास्ती गुजराती थे, बहुत मिलनसार थे हम लोग। उसमें एक अच्छा ये हुआ कि बंगाली, गुजराती सब लोगों के साथ मिलना, खान पान, व्यवहार, सब कुछ सीख लिया। अगर सब कुछ आजकल वसुधैव कुटुंबकम का बहुत चला है, मेरी ज़िंदगी में तो 3 साल से वो शुरू हो गया। इतने सारे लोग, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे आचार विचार, तो हम तो उसमें डूब डूब के पल के बड़े हुए हैं। तो फिर हमारी गली में शंकर जयंती बहुत धूमधाम से मनाते थे। यहाँ साउथ इंडिया से प्रवचन करता आते थे, पूजा होती थी, यज्ञ हवन होता था। उसमें एक दिन वो लोकल टैलेंट के लिए देते थे। स्टेज होता था, एक माइक होता था, जो भी आता था गाना गाता था या श्लोक बोलता था, कोई नाचते थे, सब कथा सुनाते थे। एक दिन फॉर द लोकल टैलेंट। तो जब मैं शायद कुछ 4-4:30 की रही होंगी, 2-2:30 बजे वो लोग सजा रहे थे स्टेज। माइक रखा वहाँ, जैसे माइक देखा भाग गई वहाँ से, स्टेज में कूद के खड़ी हो गई, माइक दोनों हाथ से पकड़ लिया कि हम गाएंगे आज इसमें। हमको पता नहीं कैसे चला कि इसके अंदर गाना है, तो हम बोले इसमें हम गाएंगे। तो लोगों ने हमको समझाने की कोशिश की। जल्दी प्रोग्राम शुरू हो गया क्योंकि बहुत से लोग आएंगे, तो 2-2:30 बजे रात को 10 बजे। तो सब लोगों ने हमें समझाने की कोशिश की, देखो बेटा और लोग गाएंगे, बड़े लोग, दीदी लोग गाएंगे, उसके बाद तुम गाना। बोलते नहीं हम ही गाएंगे, हम नहीं। एंड आई वॉज सो श्योर, हम वहाँ जम गए एकदम। आई डग माई सेल्फ इन। तो फिर कुछ लोगों ने बताया, अरे बच्ची है, छोड़ दो ना, गा के चली जाएगी, अभी उसके साथ डिबेट करोगे तो प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। तो उसके लिए हम कहा गया कि हमको गाने का मौका दिया जाए। हाथ में मौका पकड़ा, पता नहीं भगवान ही हमारे रूप से गाए।
उस वक्त में मैं जब कर रही हूँ ना, मिड 40s की बात है, 44 45 की बात। उसमें सुरैया और किसी का एक पिक्चर, उस वक्त पिक्चर के गाने भी बहुत अच्छे होते थे। तो सुरैया बहुत अच्छी गायिका थी। वो हमारे यहाँ ना रेडियो था ना हम कोई पिक्चर देखते थे। हमें अभी भी तक माँ को भी पता नहीं हमें कहाँ से सीखा, किसी का गाया हुआ शायद मेरे कान में पड़ गया, हम तो मुझे भी नहीं पता है। 2 लाइन सुनाती हूँ मैं। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान लगा दे भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा पूजा नहीं है, पूरी अधूरी है आरती। हे श्याम सलोनी तुम्हें मीरा पुकारती, इतना ही मुझको अभी याद है। तो ये पूरा हमने गा दिया। तो जितने लोग आए थे एकदम ठप हो गए लोग, सुना नहीं था। क्योंकि तब भी बाद में मैंने गाना सीखना शुरू किया, तब भी हमारे गुरुजी भी बोलते थे, माँ बाप भी बोलते थे, कभी उसमें एक बच्चे की आवाज़ या बच्चे की बू नहीं आई। आरंभ से उसमें बहुत मैच्योरिटी और स्वर शुद्धम ये सब आरंभ से ही लगा हुआ था। तो सुन के वो लोग बहुत खुश हो गए, हम भी बहुत खुश। हमको फिर हम रुके भी नहीं, हम वहाँ से भाग के निकल गए, हमारा काम हो गया, चलो ठीक है। तब फिर कहीं भी जाते थे तो लोग हमको गाने को बोलते थे। उस वक्त किसी के घर में रेडियो नहीं था, लेकिन वो 72 RPM बोलते हैं ना, वो डिस्क हुआ करता था। तो वो शादी ब्याह तो एक वहाँ थे जेंटलमैन 10-20 लाते थे, सुनाते। तो उसमें माले मणिवन्ना और विण्णगते वरुम नन्नवु माटार, ऐसा कुछ 15-20 कीर्तनम, ऐसा सब उसमें 15-20 था। कौन कंपोजर है क्या रहा आगे कुछ नहीं पता था, बस सुन के सब सीख लिया। वो 20-25 हमको आता था सुन के। तो उसके बाद कोई लोग बाहर से आते थे, कोई लोकल आदमी 10-12 गाना जानता हो तो वो सिखा देता था। लेकिन जो मेरी बड़ी बहनें थे उनको सब अच्छा ज्ञान था। वो सिखाने वाला सीखने वाला न रेडियो, कोई आज के जैसा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तब जैसे कोई सूर्य उदय हो गया हमारे देश के, हमारे जमशेदपुर के भाग्य जगे। हमारे पहले गुरु श्री विश्वनाथन, काशी विश्वनाथन, जो काशी में रहते थे, वो त्रिवेंद्रम में जाके श्री सेमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर के घर में रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनके पास ही रहे। जब वो वहाँ स्वाति तिरुनाल म्यूज़िक एकेडमी के प्रिंसिपल थे, तो वहाँ जाके वहाँ भी पढ़ाई की इन्होंने, और एकदम फर्स्ट क्लास के साथ इनकी शादी जमशेदपुर में हुई, तो वहाँ आके बस गए। ये तो हमारा स्वर्णिम काल हम यही कहेंगे। तो हम जब सीखने गए तो उन्होंने देखा कि हम बहुत एक बार में सीख जाते हैं और याद भी हो जाता है। तो सरली वर्षे सब 2 दिन में सारा सीख गए। हाँ, और अलंकार हम फर्स्ट लाइन लिख के देते थे, सरिगमा गरि सरिगमा। दूसरे दिन 2 किताब हम किताब देते, बोलते कौन लिखा है इसमें, रिगमपम अगर रिगम पूरा हम लिख देते थे। तो बोलते हम अपने बोले कैसे लिखा, कौन बताए। हम बोले सरिगमा गरि होने से रिगमपम अगर गमपद ऐसा ही तो आना है ना, तो लॉजिक है। तो वो चुप हो गए। तो दूसरे दिन उन्होंने क्या कि सब अलंकार हम 1-1 लाइन लिख के छोड़ दिया, हमने पूरा कर लिया। तो फिर वो घर में आके बोले मेरे माँ बाप को कि इस बच्चे को क्लास में मत भेजिए, हम घर आते हैं, इसको सिखाते, हमको बहुत इच्छा हो रही है इसको सिखाने की, बहुत तेज है, बहुत अपूर्वम है, बोलते ऐसे करके घर में आए। तो हमारी माँ बोल रही थी कि हम लोग प्राइवेट ट्यूशन ऐसा अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, आने दीजिए ना ग्रुप में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको फ़ीस नहीं चाहिए, बस हमको अपॉर्चुनिटी दीजिए सिखाने। जब उन्होंने बहुत अनुरोध किया तो भैया, बड़ा परिवार था हमारा, जॉइंट परिवार था, तो मान गए। तो हफ्ते में 3 क्लास बहुत प्यार से सिखाया, जैसे उस सिखाने के लिए इतने उत्सुक थे। और मेरे को भी एक बार गाया तो आ गया, तो उसको तकलीफ भी नहीं होता था। ऐसे ऐसे करके 8-9-10 साल के पहले मैंने सारा पंचरत्नम और श्रीकांतिमतीम, अम्बा कामाक्षी, 3-4 अटतालवर्णम, स्वरम, जो उन्होंने गाया वो हमने रिप्रोड्यूस कर दिया बिना किसी प्रैक्टिस के। तो माँ गा उनको बोलती थी कभी घर में नहीं गाती है ये, इसको ज़रा डांट के बोले। वो बोलते हैं ये हमको डांटती है, हम कहाँ उसको डांटेंगे, वो तो सब एकदम तैयार है। अरे जो भी हो, करार प्रिया, बड़े बड़े वो जननी नीनू विना, मैंने आप यू नेम इट,
ऐसे सब बड़े बड़े गाने हम सिखाए। जो उसके बाद हमको वहाँ पर छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशंस बहुत नहीं थे, छोटे छोटे सभा में त्यागराज उत्सव, रामनवमी, मंदिरों में बुलाते थे तो हम जाते थे, हम कंपटीशन में भाग लेते थे, सब करते थे। तो बहुत मैंने क्विकली हमने सब सीख लिया। गुरुजी तो बहुत खुश थे हमसे। तो फिर एक दिन बोले तुम्हारा किताब लाओ। हम बोले हमारे पास किताब ही नहीं है, हम कभी लिखते ही नहीं है गाना। तो बोले वो पेपर में लिख के देते थे। बोले ऐसा तो भूल जाओगी तुम, सब खो गया। तो मेरे पास अभी भी है, वो मारवाड़ी लोग अकाउंट लिखते हैं ना, एक वो बुक लेके एकदम अच्छा हैंड राइटिंग में इतना अच्छा हमारे गुरुजी ने लिख के दिया, मेरा आशीर्वाद है वो। हाँ, तो बहुत साल फिर वो चले गए भी, उनकी डेथ भी हो गई, हम भी मुंबई में रहे। यहाँ बहुत मैंने उसके वो वाली ज़िंदगी तो तब नहीं रही। सीखे आप उनसे मेरे को एक 10 साल से ज़्यादा सीखा हुआ है। हाँ, और सापा सा से एक अगर आप बोलते ये सीमा है, तो थाना मोना भी थोड़ा उन्होंने सिखाया, थियरी भी सिखाया, क्योंकि ही वॉज हिमसेल्फ फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। तो थियरी वेरी भी था। पहले ने तो किसको गा का नाम मालूम, गांधार पंचमला हरकंदरिया थे। सो बहुत अच्छी तरह से सिखाया, बहुत कुछ किया। तो फिर हम बम्बई आए तो हमको वहाँ सीखने का मौका। गीत थोड़ा सुना सकते हैं जो उन्होंने सिखाया? हाँ, कुछ भी। श्री कांतिमती शंकर युवती, श्री कांतिमती शंकर युवती, श्री गुरु गुह जननी देहम, श्री कांतिमती शंकर युवती, श्री गुरु गुह जननी देहम, श्री कांतिमती। बहुत छोटे थे हम। और एक बात है, सीधा सीधा हम पता नहीं जन्म से नहीं गाए हैं। हाँ। श्री कांतिमती, तो वो सिखाया, वो हम ऐसे अपने से हमको बोध होता था कि नहीं कांतिमती। हाँ, वो गमक का। हाँ, वो तो वो मैंने कर्नाटक म्यूजिक का बहुत फेसेट्स है। गमकम है, मनोधर्म है, हाँ, वो श्रुति शुद्धम है, मॉड्यूलेशन है। तो कोई कोई किसी किसी में बहुत स्वयं जात होता है वो। तो जब जन्म बोल सकते हैं कि आपका तो, आपके लिए तो ईश्वर का देन है, बहुत है। नहीं, अभी भी मैं फील करती हूँ ना कि मैं ही नहीं गा रही हूँ, somebody is using me as a conduit। क्योंकि किसी ने रेडियो में हमारा प्रोग्राम तो है ना, एक है यहाँ पर, उसकी आँख नहीं बेचारी, तंबुराऊ हमको बोले मामी सब लोग गाते हैं, पता नहीं आपके साथ क्या होता है, कहाँ से म्यूज़िक बरसता है आपके पास। तो वो भगवान की कृपा है उन्हें। फिर स्कूल में हर एक, वहाँ एजुकेशन वीक होता था, छोटे छोटे यहाँ वहाँ गाते थे, कोई भी बोल दिया तो हम गाते थे। उसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, अगर कोई करेक्ट करने वाला नहीं होगा तो अब गलत सुलत सब सीख जाएंगे। हाँ। तो भगवान की दया से इनका हम सब गुरुमुख में या ना कड़चदे, जो भी स्वरम सिखाते थे, कभी रागम सिखाते थे, तो इस सीरियसनेस का हमें पता नहीं था। हमको शायद आज होता तो यूट्यूब और यहाँ वहाँ डाल के बहुत ज़्यादा मने करते थे। अच्छा ही हुआ मेरे साथ वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को विकास कर पाई। इतना हो हा करते थे तो हम समझ लेते कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए, हमारा रुक जाता था हमारा ज्ञान। तो वो नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी बात। फिर जब स्कूल में, जब स्कूल वहाँ पर सब पढ़ना होता था तो हमारे वहाँ प्रेयर मीटिंग होती थी हाई स्कूल में। प्रेयर मीटिंग में एक हफ्ता एक सेक्शन को मिलता था।
तो उसमें जो अच्छा गाते हैं वो चार मिलके कोई गाना गाते थे, कोई मैंने किसी का लिखा हुआ समुपदेश पढ़ा जाता था, बस इतना 5 मिनट। तो 4 गाना होता था हर एक क्लास, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, तो वो लोग अपने मन से गाते थे। इतना बेसुरा, क्या बताएं, इतना बेसुरा गाते थे ना, मेरे को छोटपन में ही नहीं अच्छा लगता था, चिल्लाते थे तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया, एक बार अपने क्लास में जो अच्छा गाते हैं वो 3-4 को जमा किया, बोलो देखो किसी को बताना नहीं, अभी 2 हफ्ते में अपना आएगा चांस, तो हम लोगों को कुछ करना ही होगा। ये मेरे से बार बार संसार के आधार हमें कुछ ऐसा हम नहीं गा पाए, हम उनको पहले से बोल दिए कि ये सब नहीं होगा। तो 3-4 अच्छे थे, अच्छा गाते थे, हमारे जैसे माइग्रेंट फैमिलीज, तो जरा उनको साउथ केरला ये सबसे थोड़ा परिचय था, कर्नाटक में से। तो वो लोग 4-5 आए, उनको हम बोले इनको क्या सिखाएंगे, जो ये लोग गा रहे हैं वो हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो पता नहीं कैसे हो गया, हमने एक सुंदर सा गाना लिखा, अपने से लिखा, हाँ अपने से लिखा, और उसमें वो उनको सिखाया हिंदी में। तो हम जब वो गाना हमने लिखा तो उसमें ऐसा एक लाइन आता है, वो गा सकते हैं। हे भगवान करुणागार, हम दीन जनों की सुनो पुकार। हे भगवान करुणागार, हम दीन जनों की सुनो पुकार। हम हैं तेरे शरणार्थी, हम अज्ञानी विनयी विद्यार्थी, इस जीवन की यात्रा में तुम बनो हमारे सहयात्री। सत्य धर्म में रहें तैयार, हम दीन जनों की सुनो पुकार। सकल भुवन सब जग के त्राता, हे जगदीश दया के दाता। हम हैं तेरे शरणार्थी, गाते सदा तेरी ही गाथा। हम हैं तेरे विद्यार्थी, गाते रहें सदा तेरी गाथा। तुम हमारे जीवन आधार, हम दीन जनों की सुनो पुकार। दिदा नोड सॉन्ग। सो जब हम लोग गाए ना तो पूरा स्कूल ठन हो गया, कोई सुनता ही नहीं था प्रेयर। हम लोग तो क्या नया कुछ निकला, टीचर सब आके कंग्रेचुलेट किया। तो फिर बहुत उस दिन पता है क्या हुआ, हमारे जो गली है ना उसमें एक जैन मंदिर है, तो वहाँ उनके साधु लोग आए थे, चातुर्मास्यम जैसा होता है ना, तो सुशील मुनि, जयंती मुनि, ये लोग सब आए थे। कहाँ? गुजरात से। हमारे यहाँ गुजराती बहुत लोग थे, कॉरपोरेट थे, पैसे वाले थे, अच्छा उनका सब होता था। हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से घुल मिल के उनके साथ भाग लेते। तो उनका लेक्चर था, तो हमारे गली वाले बोले अपने गली में एक लड़की इतना गाती है, उसको एक बार बोलेंगे ना स्वामी जी, तो हमको ले गए। हम कभी आजकल कहीं कोई जाता है ना इतना श्रृंगार करके जाता है, हम तो जैसे मट्टी में खेल रहे थे वैसे ही चले गए गाने के लिए, और ये गाना गाया। तो स्वामी जी सुनते रहे, फिर मेरे को बुलाया, ये कौन सिखाया तुमको गाना? तो हम बोले कोई नहीं सिखाया, हमने खुद लिखा, हमने कुछ ट्यून किया। हम अभी भी लिखते हैं तो क्या होता है, ट्यून के साथ आता है गाना, संगति के साथ आता है, पेपर पैसा लेके ढूंढना नहीं पड़ता है। तो बोले वो लाइन तुम फिर एक बार गाओ, इस जीवन की यात्रा में तुम बनो हमारे सहयात्री। आई एम कॉलिंग गॉड टू बी माई को पैसेंजर इन द जर्नी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बोले ये कैसे, तुमको कौन सिखाया ये? तो बोले कोई नहीं सिखाया। आई वॉज वेरी यंग, सो आई थॉट हमने कोई गलती कर दिया, अभी डांट मिलेगी, शायद मार भी मिलेगा, इससे हम डर रहे थे। तो लेकिन हमने तो अपने आप में लिखा है। बहुत बार पूछा, दोनों गुरु ने पूछा, फिर बोले माँ घर में गाते हैं पिताजी रामायण, बहुत खुश हो गए और सब्जेक्ट बदल दिया, बोले गॉड एज योर को पैसेंजर इन द लाइफ, देन यू डोंट नीड एनीथिंग। तो हम घर में आके बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, वो ठीक है जाओ बस। वो तले तूकिंडू आड़ी कोंडाड़ी उन्हें बढ़ ले। इसके बाद क्या हुआ, वो उसके बाद कोई 60 साल बाद, ये हो गया 50 में हुआ होगा, 2012 में उसी गली का एक लड़का, तब छोटा था, बड़ा हो गया है, वो गया गुजरात में। तो दोनों मुनि वहाँ 90 साल के थे।
उसको बुला के पूछा कहाँ से आ रहे, बोला जमशेदपुर। सुनो सुनो, तुम्हारी गली में एक छोटी बच्ची थी, वो बहुत अच्छा बहुत बड़ा गाना गाया था, वो है क्या, कैसी है? तो बोले नहीं बहुत अच्छा, आजकल उसका बहुत नाम है, वो गायिका बन गई है। बहुत खुश हो गए। तो उसका सीक्वल देखो 60 साल बाद। ओहो माँ, आपको इतने सारे भाषाओं की जान पहचान कैसे हुई? आज वो तो जमशेदपुर में रहे ना, तो वहाँ बंगला, उड़ीसा ये सब सेक्शंस हुआ करता था। हाँ। और हमारे नेबर सब गुजराती थे। तो बहुत अच्छी तरह कन्वर्सेशन तो वी कैन नॉट होल्ड, लेकिन समझ में आता है, बोलना आता है। फिर हमारा जो सिलेबस है उसमें मीरा, सूरदास, तुलसीदास, कुछ बोल सकते नहीं उड़िया में हमको कुछ बोलना नहीं आता है। भालो आछे, केमन आछे, दैट इज बंगला। देन गुजराती केम छो, मजा हाँ, दैट काइंड ऑफ वेरी ரொம்ப मंडेन தான் பேச வரும்। उसके बाद वहाँ पर जो सिलेबस हुआ करता था उसमें हिंदी में मीरा, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ऐसे बहुत लोगों के जो पोएट्री हैं उनसे उनको समझने का मौका मिला। और उससे और ये ना एक इच्छा हुई ना मन में कि उसको जो पोएट्री है उसको हम ट्यून करते थे। आपको कुछ वैसा याद है? हाँ, कबीरदास के दोहे या मीरा के? एक वहाँ पर एजुकेशन वीक होता था, एक हफ्ते भर ड्रामा, ड्रिल, स्किट्स, डांस प्रोग्राम सब होता था। एक हफ्ते भर बच्चों को अपना जो कुछ टाटास का था वो पूरा अभी भी, तो इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं वहाँ पर कैपिटा, तो वहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ कर, खेल्स होते थे एजुकेशन वीक में। तो एक बार उन लोगों ने कर्नाटिक म्यूज़िक भी इंट्रोड्यूस कर दिया वहाँ पर जमशेदपुर में। जब लोग वहाँ आए थे केरला से और तमिलनाडु से, तो वहाँ उन लोगों ने एक सभा बनाई अपने, उसका नाम है मद्रासी सम्मेलनी। उसमें प्रोग्राम्स आते थे, गेम्स होता था, हमारी पूजाएं होती थी, हम लोगों को मिलने जुलने के लिए एक जगह, और कीप इन टच यू नो। तो वहाँ पर बहुत एकजुट है लोग, बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है। रिटायर भी होते हैं ना, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिटी। उतना वहाँ अच्छा लग रहा है, सब जाति के लोग हैं, अपने लोग भी हैं, सबके साथ वहाँ सब तरह का वो एंड ना इम्प्रूवमेंट होता था, पहले जैसा नहीं, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होता था। तो वहाँ होता था, मेरे को कोई भजन इतना पहले नहीं मालूम था, क्योंकि रेडियो हम बोले ना, टीवी रेडियो ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था। तो MS सुब्बलक्ष्मी की गाया हुआ थोड़ा सुना है, इससे ज़्यादा वो थोड़ा हमने भी वो भी सीखा हुआ, हरिचरणन की दासी, हरि तुम हरो, ऐसा वो मीरा वाला गाना, काटनी लेबर, ऐसा 5-6। तो हाँ, तो क्या हुआ, तो उस प्रोग्राम में कर्नाटिक तो हम कोई कीर्तने गा देते थे, और हमारे अंकल जैसे जो जानकार थे उनको जज बुलाते थे। माने इतने सारे प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो हमको लगा हिंदी भजन में हमारे जो हम म्यूज़िक मास्टर थे, तो हमारे पूरे स्कूल को हम ही रिप्रेजेंट करते थे। बंगाली लड़की आती थी, लोलो गुना, रविंद्र संगीत वो सब आती थी, लेकिन हिंदी भजन हो, कोई ऐसा पक्का गाना हो तो हमको ही बुलाते थे। तो हम बोले कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, लास्ट ईयर भी यही गाया, फिर हर साल यही कैसे गाएंगे। तो हम किताब में ढूंढे, तो ब्रजभाषा और अवधी वगैरह समझ जाते हैं हम लोग। वी कैन नॉट होल्ड ए कॉन्वर्सेशन, बट जो लर्न कर रहे हैं ना वो समझ में आता है। तो उसमें ये हमने ये ट्यून किया। किसकी? सूरदास मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरग वियोग श्याम 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 सुंदर के ठाणे क्यों नजरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरग वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे,
मधुबन तुम कथ रहत हरे, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर पुहुप धरे ससा स्याल और बन को पकेरू, दिक दिक सबन करे, कौन काज ठाड़े रहे बन में, काहे न उकठी परे, सूर श्याम प्रभु बिरग दवानल, नख शिख लौ पसरे, सूर श्याम श्याम सूरदास के श्याम, श्याम सुर श्याम प्रभु बिरग दवानल, नख शिख लौ पसरे, मधुबन तुम कथ रहत हरे, मधुबन तुम कथ रहत हरे। But later on I added that alap and all that. It was probably plainer to suit a 11-12-year-old child. आप इतना अच्छा गाते हो, पूछना तो बनता है, आपने हिंदुस्तानी भी सीखी? सीखा नहीं है, खाली ये जो मैंने क्लासिकल नहीं सीखा, क्योंकि कर्नाटक में इतना आगे बढ़ गए थे ना, तो इतना खुद ऐसे कैसे ट्यून किया आपने? नहीं, ये सब सुनते, इसमें देखिए नॉर्थ इंडिया से जो जो राग साउथ में आया है उसी में ट्यून किया है। क्योंकि मेरा दो अभिप्राय, अभी देश ना ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವ ನರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಪ ಭಾಷಾಂಗ में ನರೇ ಜಾಸ್ತಿ। सो व्हाट आई देश सुना है इंगे तुनबम नेर गए, वो गाना है ना, ऐसा कुछ सुना होगा। फिर हिंदोलम रखे हम लोग, हाँ, सो ऐसा थोड़ा बहुत वहाँ है। उसके बाद जब राममूर्ति राव और हम जब ICF में रहते थे, हम यहाँ मद्रास जब आए बम्बई से, बम्बई भी गए थे आप? 13 साल रहे वहाँ, मराठी भी जानते हम। ओहो, वहाँ का कैसा था माहौल? नहीं, तो वहाँ से जब इधर आए ना, तो ये कोई भी हमको बोलते, कोई पार्टी होता, हमारे हस्बैंड रेलवे क्लब के सेक्रेटरी थे 7 साल, और हम विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेजरर थे 7 साल। तो कोई प्रोग्राम होता, कुछ होता, पार्लियामेंट्री बॉडी कुछ आती थी ना ICF देखने के लिए कुछ, तो उनको एंटरटेन करके उनको खाना पीना खिलाते, तो कोई गाना गाना पड़ता था, तो ये 4 भजन रख के हम जमा करते थे। पर बोले क्या होगा हमारा हाल। तो फिर ना कोई हमारी माँ आई थी तो बोली एक राममूर्ति राव है, हमारी कोई रिलेटिव है हमारे घर के थोड़ी दूर, तो इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा सिखाते हैं, तुम भी वहाँ जाओ। ये कहाँ? चेन्नई में? चेन्नई में। तो हम वहाँ चले गए उनके घर में सीखने के लिए। तो राममूर्ति राव हमसे बोले आप इतना कष्ट क्यों करते हैं, आपके एरिया में अगर कॉलोनी है रेलवे, 10-12 जन जमा कीजिए, हम वहाँ आ जाते हैं। तो हमारे 10-15 जन जमा हो गए। तो वो आते थे, वहाँ आके हम लोगों को बहुत इतना आई टेल यू, इट वॉज लाइक एक जैसे कोई सोने का सुरंग खुल गया हो। हमने कभी इतना अच्छा श्लोक गा सकते हैं, इतना अच्छा तमिल में विरतम गा सकते हैं, इतना अच्छा कन्नड़ा में ओगा बोगा गा सकते हैं, इतने सारे भजन उन्होंने ऐसा ट्यून किया, खुद भी लिखा। तो लेकिन हम स्कूल एरिया से हम ट्यून करना जान गए, कुछ पता नहीं था राग क्या है कुछ, पर ट्यून जब ठीक बन जाता था। तो ऐसा वो प्रोग्राम, ये गाना उसी तरह से वहाँ सीख के किया। आप तो है मलयाली,
और रहे जमशेदपुर में, ये तमिल का वो प्रोनाउंसिएशन नहीं, वो बताएं मैं क्या, वो हम लोग जब जमशेदपुर में रहते थे और हम स्कूल पढ़ने जाते थे तो हिंदी मीडियम, बंगला, उड़िया ऐसा होता था। तो हमारे माँ, मामा, पिताजी, इन लोगों को बहुत चिंता होती थी कि हमारे बच्चे एकदम हमारा साउथ इंडियन कल्चर भूल जाएंगे। बोलते हैं हिंदी, बोलते हैं घर में आके, कुछ मालूम नहीं है फंक्शन है, कोलम पाउडर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी कम्युनिटी में कोई तमिल ज़्यादा सीखा हुआ कोई था, कल्याण सुंदरम करके, तो उस एक स्कूल में से हफ्ते में 3 बार एक कमरा वहाँ से भाड़े में लिया और वहाँ हम लोगों को तमिल स्कूल, तो बहुत उन्होंने हमको तमिल सिखाया। उसी वजह से हमको तमिल भी इतना अच्छा आ गया। जो कुछ भी सीखा था ना वो पनप रहा था घर में, मन में। फिर इधर जब चेन्नई आए तो चांस मिला तो बोले श्लोकम, पाशुरम, ये सब करने का बहुत बहुत मौका मिला। फिर हमारे वो जो टीचर्स थे ना, या म्यूज़िक के टीचर्स, उन्होंने पता नहीं एकदम मेरे को अपना लिया अपने बच्चे जैसा। तो एक एक फेसेट, तो किसी ने नरवल हमारा ठीक करा, सो रंगनाथन सर ने ताड़म विषय में हमको बहुत, आपको विश्वास नहीं होगा, हमको 2 बार पल्लवी प्राइज मिला है एकेडमी में। हाँ, तीसरी बार भी मिलना था, लेकिन वो एक जैसे जानते हैं ना, कोई पॉलिटिक्स वजह से, क्योंकि उस बारी में किसी को अगर देना था प्राइज तो मेरे को देना था, क्योंकि हमने इटकड़े में पल्लवी गाई। आपको याद है क्या, कौन सा पल्लवी? इटकलिया, इटकला इधर। ये तो इसको उठाते हैं हम, देखिए तट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको उठाएंगे। ओ ठीक है, ठीक, समझ में आया? तो चंदेर शेखरेंद्राय जयेंद्राय विजयेंद्राय नमस्ते काम कोटि पीठाय नमस्ते 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 चंदिर। वो उसमें एक छोड़ के, हाँ, और उसमें नरवल, 8 कड़े में नरवल, तो हमको मिलना चाहिए था, दिया नहीं। कोई जैसा कीर्तने के नरवल जैसे कोई गाया तो उसको दे दिया। तो हमको दूसरे दिन लोग बोले कि सब जैसे भी जितने भी संगीत एरिया है, आपका नाम बहुत चल रहा था। 8 कड़े में कौन गाने? रंगनाथन सर सिखाए थे, पहले भी उनका है। उनसे कैसे आपका परिचय हुआ? नहीं, वैसे हम पहले हमारे चमंगुड़ी के जो शिष्य थे ना, उस जमशेदपुर में, बॉम्बे में आके हम कुछ सीखने नहीं सके। हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे साथ में, और एक ना रेलवे ऑफिसर की वाइफ, तो ये पार्टी वो उसमें चल गया जिंदगी। हाँ, लेकिन रोज घर में गाते थे। एक दिन ऐसा नहीं गया हम जब घर में प्रैक्टिस नहीं किए हुए। और उनका योगदान कैसा है? बहुत, उनके बिना हम कहीं भी नहीं होते। तो उन्होंने ना पहले वो भी ही वॉज बिल्डिंग इज करियर। तो हम छोटे थे, हम बोले हाँ ठीक है, नहीं गाते हैं तो ठीक है, क्या हुआ। तो ये हरिहरन गजल गाता है ना, उसके फादर चेलमणि सर, वो मेरे गुरु के क्लासमेट थे। कहाँ? त्रिवेंद्रम में। तो फिर उसके बाद ही उसने वो अलमेलुमणि से शादी कर ली थी, जो उनके स्टूडेंट थे। तो मेरे उस सर ने उनको चिट्ठी दी, हमको कहा उनके जाके पढ़ो। यहाँ आके देखते हो तो 15-20 स्टेशन के पास कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुमको कुछ भी इधर मालूम नहीं है, हम जाने नहीं देंगे इधर उधर। तो हम घर में ही रोज़ गाना गाते थे, बच्चे बड़े हुए, मेहमान आते थे। ऐसा 13 साल गुजर गया। इसके बीच में 4 साल हम बोल नहीं सके, पूरा वॉइस ख़त्म हो गया, एकदम बोल भी नहीं सकते थे, से बोलना पड़ता था, पता नहीं क्यों। तो फिर गाते नहीं थे, इसलिए उसकी चिंता। छोटे उम्र में यू डोंट वरी अबाउट थिंग्स नो। बहुत देखा होम्योपैथी, एलोपैथी, कुछ में ठीक नहीं हुआ। तो हमारे भाई के जमशेदपुर कलकत्ता में होम्योपैथी बहुत चलता है। तो वहाँ एक के बार गए तो उन्होंने कहा हमारे भाई से, इनको इधर उधर लेके बेकार मत घुमाओ, कोई भी इसको ट्रीट नहीं कर सकता है। खाली मंगलूर में फादर मुल्लास होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन एक है कनकनाडी में, वो ही लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो उनको चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखा, 10 दिन के अंदर हमको 3 महीने का दवा आ गया।
14 रुपये में 3 महीने का दवा। तो फिर हम खाए, 3 महीने खाए, कुछ नहीं हुआ। बोले चलो उसके पहले भी कुछ खाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक 10 दिन बाद अचानक वॉइस खुल गया, ऐसा खुला इतना गमक तोड़ा है, उदव पड़ी ओड़ा है, ब्रिका ओड़ा है। तो फिर हम जैसे बहुत उसमें एकदम लिपट गए। फिर इधर ट्रांसफ़र हुआ तो इनके बॉस ने सुना, फिर उन्होंने, मैंने कहा ना हरिहर अय्यर को लाके, तो उसमें से भाई हम बोले किस्मत में लिखा था, कहाँ सोचा ख़त्म हो गया है। तो हमको एकेडमी स्टेज में खड़ा होकर हमारे को संगीत कला आचार्य बिरुद दिलवाया भगवान ने। हमारे पतिदेव का इसमें कहा था, मद्रास में आने के बाद जब उनको व्हेन ही रियली न्यू माई बर्थ, तो उन्होंने बहुत मेरे को पहले बोले कि तुम रेडियो में गाओ। क्या करना है गा के? बोले नहीं गाना है। फिर फॉर्म फिल किया, फिर हम ऑडिशन में गए। फर्स्ट ऑडिशन में बी मिल गया। तो फिर हम बोले ठीक है, अब तो ठीक है ना। बोले नहीं, बी में कौन गाएगा, तुम यू मस्ट बिकम बी है। वो बोलते क्या, अरे रात को 11:30 बजे कोई सुन भी नहीं रहा है। तो फिर बी है हो गया। तो हम बोले चलो अब तो आराम है। बोले नहीं तुमको ए बनना है, यू आर सो टैलेंटेड, यू शुड। ऐसा करके हमको ए भी बनाया। तो उस वक्त ना ए के बाद हम लोग नहीं जा सकते थे। वो तो ए टॉप तो खाली बालमुरली MS उनको मिलता था। तो उसके बाद ये ओपन अप हुआ हमारे लिए भी। तो उसमें क्या है, ऑडिशन नहीं, उसमें कॉन्सर्ट भेजते हैं हम लोग। तो उसमें हम गए तो फिर वो भी मिला। इनकी वजह से, नहीं तो हम आज भी बी बन के कहीं कॉर्नर में बैठे रहते। बहुत बोलते, आइडिया देते थे उसको ऐसा। और खुद उनको जितना म्यूज़िक हमारे साथ रहने से सीखा ना, हमको उतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं आया, कुछ भी नहीं सीखा उतना। वो ना पता है सब, ಶ್ಯಾಮ ಅರಬಿಕ್ ನಡುவில் ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಿ ಶ್ಯಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಡೆ ಅದು ಆಲ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಿಕಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಾಸ್ when that is what 2007 I got my A top. So when I was singing in IIT, then only Usha told me, "Mami, ungalku A top vandirukku." He was so happy. Anga vachu I was telling everybody, kulandagalukku edhi pada apdi. He was so happy. So his contribution is immense. The way he has koi bane, there is one thing, you know, द्वारका में शब्द गयो गरुड़ तजी सिधारे द्वारका में द्वार. So he told me the द्वारका पाड़ रहे अडिक्रा मारी you have to tone down. So ऐसा कौन बताएगा? तब से द्वारका में so that I needed. And my very first introduction to music academy was Lekdem. Oh. I was so scared, you know, because those days Mudigondan, Musiri, Ariyakudi, all the Singangal, they were the experts committee, and they immediately after they finish their deliberation, they will come to listen to the in deliberations le avarpa kantu kepa. TSP Mama saw my article in one of the souvenirs of some sabha. I wrote about bhajans bridging north and south. There is a lot of north-south divide. These things are bridging. So यही था आपका टॉपिक एकेडमी में भी. हाँ, तो वो बोले हमको, we asked whether any chance for கச்சேரி. He said கச்சேரிலாம் பிப்ரவரியிலே ஃபில் ஆயாச்சு, நீ வந்து இப்போ ஆகஸ்ட்டில் கேட்குறேம்மா, பட் कैन यू डू ए लेग डेम, आई सॉ योर आर्टिकल, तो वो ही कर दो. तो हमने कहा ठीक है. तो वो 45 मिनट्स का प्रोग्राम था. तो हम बोले ना, जमशेदपुर में रहने की वजह से ब्रिजभाषा, अवधी, एंड हाउ मेनी पीपल हियर इन साउथ नो देयर वर सो मेनी मुस्लिम पोएट्स, कृष्ण भक्ता एंड राम भक्ता. आई हैव ट्यून्ड वन रस खान्स पोएम. And later when I was working on this Lekdem, I realized Ras Khan's poem completely reflects what Kulashekara Alvar has said. ये कुलशेखर आಳ್वास ने कहा है कि मेरे को, हे भगवान, मेरे को तिरुपति का एक पड़ी बना दो. அல்ல திருப்பதிக்கு போகிற படி. सो भक्ता पोवालटा அந்த அங்கே இருக்கிற वहाँ पर जो नदी है ना, उसमें एक मछली बना दो. तो आमाम. सो ऐसा उन्होंने लिखा है. तो वो मेरे को
जब मैं पाशुरम सब करने लगी, कंपेयर करके बोलने लगी, तो थोड़ी मैं भी उम्र में बड़ी हो गई थी ना, तो और ज़्यादा थोड़ा विषयों के बारे में जानने पहचानने मिला। नेचुरली इंक्विजिटिव हूँ, तो ये सब पढ़ने उड़ने का मैं मौका मिला। तो उसमें ना वो रसखान का बहुत अच्छा है, मानुष्य हो तो वही रसखान बसाऊंगे। बोलते हमको मनुष्य जन्म दोगे भगवान, तो हमको गोकुल में दो जन्म। आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द कृष्णाज फ्रेंड्स। अगर यू वॉन्ट टू मेक मी ए पत्थर स्टोन, make me a stone in the Govardhanagiri, because he'll lift it, so probably his hand will touch me. No, if you want to make me a pashu, that is Madu and Mari, make me one in the group of pashus which Krishna took for. Then, no, if you want to give me the birth of a pakshi, let me be a bird in the banks of Yamuna, so that I can really witness Krishna doing Rasa Krida. This is why everybody is fighting, I don't know. उसके 2 लाइन गा सकते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसाओ गिरी गोकुल ग्वार न लाकर, जो पशु हो तो बसेरा का, दो पशु हो तो कहा बस मेरो, बसो गिरी गोकुल देनु मझारन, पाहन हो तो उसी गिरी को कर दर्द कियो कियो छत्र पुरंदर धारन। परंतु जो पंछी हो तो कहा बस मेरो, அந்த யமுனா தட்டில் இருக்கிற இதில் வந்து இப்போ சட்னி ஞாபகம் வரல, அது மாதிரி இது பாகேஸ்வரியில் நானே டியூன் பண்ணுது. தென் ஐ தாட் இட்ஸ் இஸ் டூ ஸ்மால். தென் வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஈஷ் மகேஷ் கணேஷ் சுரேஷ் भजन அதுலேயும் சேர்த்தாம அதுவும் ரஸ்கான். ஈஷ் மகேஷ் தினேஷ் கணேஷ் சுரேஷ் இவாள்லாம் யாரை பிரார்த்திக்கிறாளோ, ஜாயி அகண்ட் அபேது அச்சேது, ஒரு பேதங்களெல்லாம் அவர் அகண்ட் அபேது அச்சேதுன்னு சொல்லறது. இத்தனை முனிகள் இருக்காளே, அவள் வந்து கடுமையான தபஸ் பண்ணுறான், ஆள் கிடைக்கல. ஆனால் இந்த படிப்பறிவு இல்லாத இந்த மாட்டுக்கார பசங்க பொண்ணுங்க சின்ன மண்ணு குடுத்தியில் கொஞ்சம் மோரையும் வெண்ணையும் வச்சுட்டு அவனை எப்படி டான்ஸ் பண்ண வைக்கிறது பாரு. ஹீ ஸோ ஈஸிலி அவைலபிள் டு தெம். நான் பக்தி எத்தனை நிஷ்காமிய பக்தி, எத்தனை பியூர் பக்தி. ஆமாம், அதனாலே தான் இது ஸ்லோவாக பாடிட்டு पंछिया பிறந்துட்டேன்னாக்கா बसेरा करो उसी कालिंदी कूल कदम्ब के डारन ईशु सुरेश गणेश महेश सुरेश அவள்லாம் யார் அப்படி பாடுறாளோ ஜாய் அகண்ட் அபேது அச்சேது சுபேது பேது பத்தாவே. அப்புறம் தபஸ் பண்ணுறவா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறா, பட்னி கிடக்கா, ஒரு காலில் நின்று எல்லாம் பண்ணுறா. ஆனால் ताहिया हीर के छोहरिया छछिया भरी चाच पे नाच नचावे. ஒரு மண்ணு குடுத்தியில் இத்தனை மோரே மண்ணையும் வச்சுண்டு அந்த சின்ன சின்ன ஆயர்குலத்து பெண் குழந்தைகள்லாம் எப்படி அவனை இஷ்டத்துக்கு ஆட வைக்கிறது? அவளோட அவன் எப்படி ஒன்றாயிட்டான், அவன் என்ன புண்ணியம் பண்ணான்? அப்படி அது இதில் சேர்த்து ரஸ்கானோட அது மாதிரி காலஸ் வந்து முஸ்லீம் ராம் பக்த் கவி. ஸோ அவளோடதெல்லாம் ராம்மூர்த்தி ராவே நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அதுக்கு மேலே நிறைய சிலதை நான் கண்டுபிடிச்சி அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறதுல என்ன ஒரு சின்ன எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்ததுன்னா, நிறைய லேடிஸ் வருவாள், அவள் எல்லாம் ஒரு லெவலில் இருப்பாள். இந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன் இந்த ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் அவள்கிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் நான் என்னோட தனியாக ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். அது மாதிரி அஷ்டபதி ஒரு 6-7 சொல்லிக் கொடுத்தார் அவர். அதில் அஷ்டபதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஜனை பத்தத்தியில் முகாரி கல்யாணி அந்த மாதிரி அது ரொம்ப நன்னா தான் இருக்குது. இவரெல்லாம் ராகம் அது யாமிஹி கமிஹ சரணம் சகி யாமிஹே கமிஹ சரணம் प्रतिवचन वंचिताहं यदतु गमनाय ऋषि
वदनननननन तेहि मम हृदय मिये कमिह चरणम. இது வந்து பிரதேஷ் அல்ல, திலக் கமுத். ரேமா பாணி சா சா ப த ம க ரே சா ப த ம, அதுதான் அதுக்கு விசேஷம். அது மாதிரி ஒரு 4-5 ரொம்ப அசாத்தியமாக பிரியே 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 चारुशीले प्रिये चारुशीले मुञ्चमयि मानं निदानं प्रिये चारुशीले. மாதிரி ஒரு 6 ராமூர்த்தி ராவன். அப்புறம் ஜம்ஷெட்பூரில் ஒரு ஆப்டேஜி இருந்தார், சந்திரகாந்த் ஜி ஆப்டே. அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கற்றுந்தேன். ஹிந்துஸ்தானி பற்றி சில விஷயங்கள் அவ சொன்னேன் கேட்டதுனாலையும். சின்ஸ் ஐ நோ கர்நாடிக் அந்த ரொம்ப ஹிந்துஸ்தானி ராகம் எல்லாம் படிக்காட்டார். ஏன்னா ரெண்டையுமா கீப்பப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டூ தட். இந்த டியூன் எல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறது. இது வரை आपने तो वायलिन ब्रदर्स उनसे भी कुछ सीखा यहाँ. कौन वायलिन ब्रदर्स हैं? आपने बोला था गणेश अय्यर. नहीं, वो हरिहर अय्यर मेरे पहले टीचर थे. जैसे हम बम्बई से यहाँ आए ना, तो इनके बॉस ने उनको लाके हमारे पास छोड़ दिया हमारे घर. कल से आएंगे सिखाने, इसमें सीखना पड़े. बहुत अच्छा सीखा. बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी जिसका पता नहीं था. सिमेंद्र मध्यम षण्मुख प्रिया मिक्सा इंटर आई डिडंट नो. उन्होंने वो सब सादा ठीक किया. और उनका राग आलापना एंड वायलिनिस्ट भी थे ना उसलिए. और गणेश अय्यर तो मृदंगिस्ट थे. तो मेरा पहला कचेरी उनके साथ हुआ. बहुत स्टालवर्ड थे वो इनके बॉस के घर में. तो उसके बाद वो चले गए. तो उसके बाद से इनसे सब सीखने का मिला. और फिर ना हमारे लक्ष्मी शंकर थी ना, एक मालूम है लक्ष्मी शंकर? वो हमारे परिवार से थी. हाँ, शी से साउथ इंडियन, पालघाट साउथ इंडियन, मैरिड टू रविशंकर से यंगेस्ट ब्रदर राजेंद्र शंकर. हाँ, तो वो हमारे फैमिली में कभी आना, उनका भजन हमको बहुत अच्छा लगा. क्योंकि उनके गायन में कर्नाटिक और हिंदुस्तानी का बड़ा अच्छा वो मेल था. तो इसलिए मेरे को, तो उन्होंने हे गोविंद हे गोपाल हम लोग बहुत सुने हैं. मिश्र समाज में कोई गाता, हम लोग देश में गाते. राममूर्ति राम सिखा उनके पास में नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, सब लक्ष्मी शंकर के टेंद पढ़ते ना और पाड़ते कट. तो उसमें से वो अलंकारम सब उसमें जोड़ किया. मेरे श्याम ऑल दैट, मीरा के प्रभु आलाप अंगेल्लाम पाடுறது. ठुमरी स्टाइल भजन पाடுறது, சும்மா भजन பாடலாம். and then if you are in search of something to you find out things. அது எப்படி பண்ண, அது அப்படி பண்ண நம்மளே அறியாமே அது வரும். then God helps also, no? so இது என்ன பண்ணும் मीरा भजन. आप बता रहे थे आप कैसे चंगलपेट रंगनाथन जी से मिले. वो नहीं, हम सब राजगोपाल अय्यर, फिर रामनाथन सर डाइड इन 87. यस रामनाथन. तो उसके बाद में हम उनके पास पे आप सीखे 8 वर्षम टिल ही डाइड. राजगोपाल अय्यर के पास म्यूजिकोलॉजी, फिर एस रामनाथन. सो हमको पहले सेमंगुड़ी स्टाइल, फिर हरियकुड़ी स्टाइल, फिर टाइगर स्टाइल. उसके बाद उनके डेथ के बाद हम रंगनाथन सर को हमने देखा है और एडिया में काम करते थे वो. हम तो गाने के लिए जाते थे. तो हम उनका एक बार गाना सुना शंकराभरणम, तो हमको बहुत डीप लगा उनका गाना. तो कोई और नहीं था, तो हम बोले तो पल्लवी में भी इतना प्रॉब्लम है. तो हम उनके पास गए. तो उन्होंने बोला हमको तुम टेप करके ले जाओ, सीखो. बोले नहीं, हमको सीखना है. तो बोले कि हाँ. तो तब से वो मैंने कहा ना मोहनवर्णम 6 महीना भर वही चला. तालम सब, तालम का भी बोल चुका है ना. तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक 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 धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी. फिर स्लो मी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक धिमी तक, ऐसा करके ऐसा बहुत ट्रेनिंग दिया. हाथ में चतुश्रम, मुँह में तिश्रम, ये सब ட்ரைனிங் தியா. போல தாளம் நல்லா இருந்தால். और நிரவல் ரொம்ப அழகு பண்ணேன். சி இப்பவும் அப்பவும் சரி, இது நிரவல் என்னமோ எனக்கு ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தது.
So what he did was, eppadi like ragam, you develop it stage by stage. You start in one place, from there you start developing, then 3 columns, then how to keep and the edathliye vechukaradu. What is Neraval? You fill the 2 blanks with illaya bhulaka vaikunta மீதியனிபு இது மாதிரி பாடுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தோம். ஒரு ஆல்ரவுண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். தென் நிறைய ஆலத்தூர் பாடத்தில் ஹீ டாட் மீ ஸோ மெனி திங்ஸ். மீசு கிருஷ்ணய்யஸ் கிருத்திஸ், தே ஆர் வெரி கிரேட் ரெபாசிட்டரிஸ். ஸோ அது ஹீ ஹேட் ஓன்லி போய்ட்ரி. சாரோட டீச்சர்ஸ் ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பிரதர்ஸ் ஃபாதர் வெங்கடேஷ் ஐயர். They are the persons who set all the Meesu Krishna Kritis to tune with loveliest of lovely. Parama Pavana Papa Mochana. அதில் வந்து ச ரே கமதரி கமதனி சானி தமகரிஸ், அது மாதிரி அதுக்கெல்லாம் டியூன் எல்லாம் போட்டு அந்த பாவையே பரமகுரும் அது எல்லாத்துக்கும் இந்த சிட்டு சிறப்பான அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப பண்ணியிருக்கார். அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து நிரவல் ஸ்வரம் எல்லாம் கூட சும்மா சானிதப்பான்னு பாடாமல் ஒரு லாஜிக்கோட பாட ரொம்ப அது சொல்லிக் கொடுத்தார். பல்லவி அஃப்கோர்ஸ் 4 கலை தான் எல்லாமே. பல்லவி ஒரு கொஞ்சம் 10-20 இடம் சொல்லி கொடுத்துருப்பார் நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் ஹீ பிகேம் வெரி சிக் வித் டயபிட்டிஸ். ஸோ ஹீஸ் கிளாஸ் டைமிங்ஸ் நிறைய மாமவசா எல்லா பாட்டுக்கும் நிரவல் ஸ்வரம் உண்டு. அந்த மாதிரி அவர், தட் இஸ் ஹவ் ஐ மெட் ஹிம். அண்ட் ஐ திங்க் லாங்கஸ்ட் ஸ்டிண்ட் வாஸ் வித் செங்கல்பட்டு மம்மாஸ் ஹவுஸ், பிகாஸ் 88 to 2008 20 years ரொம்ப நிறைய ஹி பிகேம் பார்ட் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஹோல்டு. இந்த 35 தில்லானா இது தவிர சார் வந்து இந்த எல்லா மேலக்கர்த்தாலும் திருப்புகள் பண்ணியிருக்கார். பட் ஐ டென்ட் ஹாவ் த குட் ஃபார்ச்சூன் டு லேர்ன் தட், யூனோ. திஸ் இட் செல் இந்த கிளாஸை சொல்லி கொடுத்துடுவார். அந்த தில்லானா கையில் கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு 1 மாதம் 1.5 மாதம் எங்கேயா பாடணும். ஸோ அது தோஸ் திங்ஸ் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம். தென் பாம்பேயில் இருந்ததோட அட்வான்டேஜ், அட் தட் டைம் ஐ லேர்ன் டு ஸ்பீக் மராட்டி. வேறு வழி இல்லை, எவ்ரிபடி ஸ்பீக்ஸ் மராட்டி, ஸோ ஐ லேர்ன். அந்த அட் த டைம் ஐ டென்ட் லேர்ன் ஈவன் ஒன் அபங் தேர். I should have done it. I didn't think, I didn't even know probably. இங்கே வந்து இந்த பஜன்ஸ் எல்லாம் சீரியஸாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு தான் அபங் எல்லாம் தெரிஞ்சது. So Ramurthy Rao taught us a few. Then I learned from him that my other friends tell me, yes, he taught you and he taught us. We are still there only. But you बहुत आगे बढ़ गई हो, बहुत कुछ कर लिया है तुमने उसमें. इधर और उधर ने थोड़ा सा बहुत छोटा वाला एक ब्रिगान है तो छोटा वाला एक कोई संगति डाल के उसको कैसे सजाना है, तो वो सब हमने उनके पास से किया. तो इसलिए हमको मराठी भी अमृता हुनी गोड नाव तुझे what the words say, the pronunciation is very important. Any bhasha. So those things I was very rewarding. Then after he taught me some very lovely bhajans. Kutumbataji. Lot of theory I learned from as a page la varum. Then the Bhaskande inga vandar, he took 10 Melakartas from us. Just 10 Melakartas only he took. So what they did, there was a shortage of raga. So that is why Hindustani they mix 2 ragas. Basant Bahar, Megh Malhar. We have only Mohana Kalyani, which is truly that. Otherwise, Vasanta Bhairavi, Hindola Vasantamla, Hindola Vasanta onnume kedaiyadhu. So and madri mixing 2 ragas, and Muthiah Bahudar being a pioneer in so many things, he adapted that. Gauda Malhar vachundu Saranga Malhar nuttu. So adellam panadu pannuva. Apra innonu very mukhya thing which I did know early, Purvanga Pradhan and Uttaranga Pradhan. Some the Mohanata தான் பூப்னு பாடுறா, அது பூர்வாங்க பிரதான். மேல நீ மோகனத்தை பாடியனா இட் பிகம்ஸ் தேஷ்கார். ज्योति कलश छलकी ज्योति कलश छलके हरे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबार लगे ज्योति कलश छल. மோகனம் தான் ப்ரிடாமினட் மேலே.
कंप्लीटा यू कैन नॉट अवॉइड उत्तरांगम और पूर्वांगम इन एनी रागा பட் ப்ரிடாமினன்ஸ் அதை பார்த்து அது வந்து தேஷ்கார் கீழே படினா பூப் அது மாதிரி கீழே பூர்வாங்க பிரதானாக்கம் யமன் கல்யாண் தர்பாரி கன்னடான பூர்வாங்க பிரதானத்தினால இப்போ என்ன என்ஜாய் பண்ண முடியுமா உங்களால் ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮೇಲೆ ದಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪೋಹಾದೆ ಕುಟುಂಬ ತಜಿ ಶರಣ ರಾಮ तेरी आयो பூர்வாங்க பிரதான் ராகம் ஸோ மத்தியமத்தில் பாடணும் நம்ம இங்கே கன்னடாவை கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கடிச்சு கடிச்சு பாடிவிட்டு அது தர்பாரி கன்னடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ ஆக்சுவலி What as we ask you are a சமுத்திரம் நீங்கள் என்ன இருக்கு உங்கள்கிட்ட அதுக்கே அதே எங்களுக்கு தெரியாமையே போச்சு இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ இருக்கு सो आई थिंक फ्रेंड्स वह एपिसोड ले ये पूरा एक एपिसोड में करना तो लाइक मतलब इम्पॉसिबल होगा तो ये पहले नो वी हैव नॉट टच्ड मनोधर्मम एट ऑल यस सो उसका ही एक सेपरेट एपिसोड ऑन ओनली मामी's views on मनोधर्म संगीता and in-depths and intricacies of Carnatic music ये तो हम ज़रूर करेंगे और वो तमिल भाषा में करेंगे ये तो पूरा हिंदी भाषा में हो गया मराठी में करेंगे ब्रज में वो तो मुझे नहीं आता मामी ही सिखाएंगी मुझे भी नहीं ब्रज भाषा में आई अंडरस्टैंड द मीनिंग जिस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू प्रेजेंट एंड एंजॉय என்ன பாடுறேன்னு தெரியுது यू वांटेड मैं समझता हूँ कि जितना आनंद मुझे हुआ है यहाँ बैठ के माँ जी को सुनते गाते सुनने आप सबको भी उतना ही आनंद पहुँचा होगा आशा करता हूँ इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर करेंगे और माँ जी से जो जो उनके पास है ये सब भजन अभंग और कर्नाटिक म्यूज़िक में तो हम ऊहा भी नहीं कर सकते उतना है उनके पास सब लोग जो कर्नाटिक म्यूज़िक स्टूडेंट्स हैं इसका लाभ उठाए माँ जी से ये सब सीख है और यही प्रार्थना है आप सबसे तो बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपको धन्यवाद जितना आपने एंजॉय किया है ना उससे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया थैंक यू कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि